فورن فنڈڈ منصوبوں کی مشترکہ کمیٹی کا جائزہ اجلاس محسن نقوی نے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ میں صدارت کی۔ ایشیائی اور عالمی ترقیاتی بینک کے اعلیٰ حکام سے بھی ملاقات۔ پنجاب میں عالمی بینک کے تعاون سے 12 منصوبے جاری ہیں۔ عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین، ایشیائی ترقیاتی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر اور دیگر ڈونرز اداروں کے اعلیٰ حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان اور چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ افتخار سہو نے بریفنگ دی۔ پنجاب میں عالمی بینک کے تعاون سے $2456 ملین کی لاگت سے 12 پروجیکٹس، جبکہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے $849 ملین کی لاگت سے 8 پروجیکٹ پر کام جاری ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ ٹرانسپورٹ، ماحولیات اور فیملی پلاننگ میں اہداف کے حصول کو یقینی بنائیں گے۔ عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے ٹرانسپورٹ، ماحولیات اور فیملی پلاننگ کے شعبوں میں تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے تیز ترین رسپانس ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا پوری ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے اور ہم عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور دیگر اداروں کے ساتھ اشتراک کار کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ حالیہ ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں 0.33% کمی۔ ادارے شماریات کے مطابق رواں ہفتے 17 اشیاء سستی ہوئیں۔ چاول، پیاز، چینی، گڑ اور کیلے بھی سستے ہوئے۔ دوسری طرف موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی انڈوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ حالیہ ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 0.33% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق رواں ہفتے 17 اشیاء سستی ہوئی۔ چاول، دالیں، پیاز، چینی، گڑ اور کیلے سستے ہوئے۔ ایک ہفتے میں چکن 36، LPG سلنڈر 50، 1 کلو چینی ₹3 سستی ہوئی۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا ₹44.36 سستا ہوا، جبکہ آلو، ٹماٹر سمیت 14 اشیاء مہنگی ہوئی۔ موسم سرما کے آغاز پر ہی انڈوں کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی۔ ایک درجن انڈے ₹335 کے ہو گئے ہیں۔ ایک دیسی انڈے کی قیمت 50 سے $60 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ دکانداروں نے جلتی پر تیل کا کام کرتے ہوئے اشیاء ضروریہ خود ہی مہنگے داموں فروخت کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ مٹن 2400، بیف 1000، دودھ 180، دہی 210 سے $220 کلو میں بیچی جا رہی ہے اور ضلع انتظامیہ سب اچھا کی رپورٹ دے رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسکول ایجوکیشن کی وارننگ کے باوجود اساتذہ کی لاپرواہی، 1000 کے قریب اساتذہ نے پروفیشنل ڈگری حاصل نہ کی۔ 800 ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز BEd ڈگری کے بغیر ہیں۔ 105 سیکنڈری ایجوکیٹرز کے پاس پروفیشنل ڈگری نہیں۔ اسکول ایجوکیشن کی بار بار کی وارننگ کے باوجود اساتذہ نے ایک نہ سنی۔ 1000 کے قریب اساتذہ نے پروفیشنل ڈگری حاصل نہ کی۔ اسکول ایجوکیشن کے مطابق 800 ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز BEd کی ڈگری کے بغیر ہیں۔ 105 سیکنڈری ایجوکیٹرز کے پاس پروفیشنل ڈگری نہیں ہے۔ 21 سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز کے پاس BEd کی ڈگری نہیں ہے۔ ان اساتذہ کو متعدد بار وارننگ دینے کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ تاہم اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 31 دسمبر کی آخری وارننگ جاری کر دی ہے اور اس کے بعد متعلقہ اساتذہ کو نوکریوں سے فارغ کر دیا جائے گا۔ کرے کوئی بھرے کوئی، PMDC نے پنجاب کے میڈیکل کالجز میں داخلے روک دیے۔ سرکاری اور پرائیویٹ کالج میں فی الحال داخلے نہیں ہوں گے۔ سندھ اور خیبر پختونخوا میں بلوٹوتھ سکینڈل کے بعد امتحان ملتوی ہوا۔ سینکڑوں طلباء نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ خیبر پختونخوا اور سندھ میں MD کیٹ کے امتحان میں نقل کا سکینڈل سامنے آنے کے بعد دونوں صوبوں میں امتحان دوبارہ منعقد ہونے کا خمیازہ پنجاب کے طلباء بھگتیں گے۔ PMDC کی جانب سے پنجاب کو بھجوائے گئے مراسلے میں UHS کے زیر انتظام صوبے کے سرکاری اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں داخلوں کا عمل روکنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ PMDC کے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ سندھ اور KPK میں دوبارہ منعقد ہونے والے MD کیٹ امتحان میں پنجاب کے ڈومیسائل ہولڈر طلباء بھی حصہ لے رہے ہیں جو کہ پنجاب میں داخلے کے اہل ہیں۔ اس لیے ان طلباء کو حق تلفی سے بچانے کے لیے پنجاب میں سرکاری اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے داخلے کی میرٹ لسٹ جاری نہ کی جائے۔ مراسلے کے مطابق سندھ اور KPK میں دوبارہ MD کیٹ امتحان دینے والے پنجاب کے ڈومیسائل ہولڈر طلباء کو سہولت دینے کے لیے پنجاب میں ہونے والے شفاف ترین MD کیٹ امتحان پاس کرنے والے طلباء کے داخلے تاخیر کا شکار ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ جیل میں بند ملزمان کی ٹرائل کورٹ میں آن لائن حاضری یقینی بنانے کا منصوبہ جسٹس شجاعت علی خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ IG پنجاب، IG جیل خانہ جات کی شرکت۔ منصوبے پر پیش رفت کے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ جسٹس شجاعت علی خان نے افسران کو منصوبے پر جلد عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ ہائی کورٹ میں IT شعبے کی انتظامی سربراہ جسٹس شجاعت علی خان کی زیر صدارت کانفرنس روم میں اجلاس ہوا۔ IG پنجاب عثمان انور، IG جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر شریک ہوئے۔ DG کیس مینجمنٹ سیشن جج تنویر اکبر، قائم مقام پراسیکیوٹر جنرل رانا عبدالمجید نے شرکت کی۔ سیشن جج راولپنڈی ملک مشتاق احمد اوجلا سمیت دیگر سیشن ججز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ بتایا گیا کہ ای کورس منصوبے کا آغاز نومبر کے پہلے ہفتے راولپنڈی سے ہوگا۔ اجلاس میں ریگولر کیسز سے قبل ملزمان کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری یقینی بنانے کے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ جیلوں سے ملزمان کی ٹرائل کورس میں آن لائن حاضری سے متعلق جاری SOPs کے بارے میں بھی تبادلہ خیال ہوا۔
IG पुलिस और जेल समेत दीगर अफसरान ने मुल्जमान की तादाद और ट्रायल कोर्ट्स में पेशियों के मुतालिक ब्रीफिंग और तजावीज दी। जस्टिस शुजात अली खान ने अफसरान को मंसूबे पर जल्द अमल दरामद कराने की हिदायत की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कोर्ट्स मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। जस्टिस शुजात अली खान, IG पुलिस, IG जेल, मुतलका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस समेत दीगर मौजूद होंगे। इब्तदाई मरहले में 9 अजला में मंसूबे पर अमल होगा। इसके बाद तमाम अजला में तौसीक की जाएगी। तुर्किया के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में तुर्किया के मिसाली ताउन की दिल से कदर करते हैं। तुर्किया के कौमी दिन की मुनासबत से होने वाली तकरीब में वज़ीर आला पंजाब ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौका पर मोहसिन नकवी ने कहा कि तुर्किया हमारा इस्लामी भाई, हर मौसम का दोस्त और शराकतदार है। पाकिस्तान की तरक्की में तुर्किया के मिसाली ताउन की दिल से कदर करते हैं। काउंसल जनरल तुर्किया डर्मिस बॉस्टिंग ने वज़ीर आला के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर वज़रा मंसूर कादिर, आमिर मीर, असफर अली नासिर और दीगर भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ से साबिक अरकान कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक और शाइस्ता परवेज़ मलिक की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने 21 अक्टूबर के तारीखी जलसे के इनेकाद में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की मेहनत को सराहा। होने वाली मुलाकात में अली परवेज़ मलिक, शाइस्ता परवेज़ मलिक भी मौजूद थे, जबकि उन्होंने कहा कि कायद नवाज शरीफ के पाकिस्तान आमद ने सियासी माहौल बदल दिया है। सियासी माहौल की तरह मुआशी बदहाली के माहौल को भी बदलेंगे। पाकिस्तान के हालात बदलने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। इस मौका पर शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक ने पार्टी सदर से जमाती और सियासी सरगर्मियों के हवाले से तबादला ख्याल किया। माल रोड की बहाली के लिए 30 अक्टूबर की डेडलाइन। कमिश्नर लाहौर का म्यूजियम और इस्तांबुल चौक का दौरा, शहर के मुख्तलिफ अंडरपासेस की सूरत हाल देखी। मोहम्मद अली रंधावा मोहलनवाल स्कीम भी गए। मॉल रोड की बहाली के लिए 30 अक्टूबर की डेडलाइन। कमिश्नर ने मस्जिद शोहदा, म्यूजियम और इस्तांबुल चौक का दौरा किया। तज़ीन और आराइश के कामों का जायजा लिया। DC लाहौर और DGPHA ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने कहा, मॉल रोड पर तमाम तालीमी अदारों के मरकजी गेट, बैरूनी दीवारें, फुटपाथ को बहाल किया जा रहा है। मॉल रोड को इसके तारीखी पस मंजर और सकाफत पर बहाल किया जा रहा है। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने शहर के मुख्तलिफ अंडरपासेस का दौरा किया। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने FC कॉलेज अंडरपास पर जारी तज़ीन और आराइश के काम पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर का कहना है, कैनाल रोड के तमाम अंडरपासेस की तज़ीन और आराइश का काम टीपा करेगा। पहले मरहले में कैनाल रोड के दोनों तरफ 9 अंडरपासेस की तज़ीन और आराइश के काम का आगाज किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर मोहनवाल स्कीम भी गए। स्कीम में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। ज़ेर तामीर मस्जिद को देखा। स्कीम के रिहायशियों से मुलाकात की। सोसाइटी से मुतल्लिका मसाइल सुने और फौरी हल के अहकाम जारी किए। मोहम्मद अली रंधावा ने स्कीम की मसाजिद, पार्क, सड़कों और ग्रीन बेल्ट पर काम तेज करने की भी हिदायत की। दिलकश लाहौर मंसूबा तकमीली मराहिल में है। DC लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर राफिया हैदर ने इस्तांबुल चौक पर जारी तज़ीन व आराइश के कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला के विजन के मुताबिक दिलकश लाहौर मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में है, जबकि DC ने कहा कि माल रोड पर बेतहाशा कदीमी इमारत और मुकामात तक बेहतर रसाई और तज़ीन व आराइश के लिए काम जारी है। मंसूबा 31 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। दीगर अहम शाहराहों की भी तज़ीन व आराइश होगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल आमद ज़ेर इलाज कांस्टेबल गुलाम मुस्तफ़ा की आयादत की, जबकि IG पंजाब ने कांस्टेबल गुलाम मुस्तफ़ा के अहल खाना को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कांस्टेबल गुलाम मुस्तफ़ा की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। IG पंजाब ने कहा कि अलालत के मुश्किल वक्त में पंजाब पुलिस अपने अहलकार को हरगिज़ अकेला नहीं छोड़ेगी। कांस्टेबल गुलाम मुस्तफ़ा के अहल खाना की ज़रूरियात का भी मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। MD पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी SN यूनस, AIG एडमिन अम्मारा अतर समेत सीनियर पुलिस अफसरान IG पंजाब के हमरा थे। नैब लाहौर में माहाना खुली कचहरी का इनेकाद। हाउसिंग सेक्टर के सैकड़ों मुतासिरीन शिकायत के इजाले के लिए DG नैब के रूबरू पेश हुए। DG नैब लाहौर ने तफ्तीशी टीमों को फौरी तौर पर मुतासिरीन की दाद रसी के अहकाम जारी किए। DG नैब ने कहा कि नैब तमाम गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ और उनकी इंतजामिया के खिलाफ घेरा तंग कर रहा है। DG नैब ने निजी हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया को नैब ऑफिस बुलाकर मुतासिरीन की दाद रसी के अहकाम जारी किए। DG नैब ने कहा कि चेयरमैन नैब के विजन के मुताबिक आम शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए कोशां हैं। नैब आइन और कानून के ताबे रहते हुए निजी सोसाइटीज़ की बरवक्त डेवलपमेंट मुकम्मल करवाने के लिए भी इक़दामात जारी रखेगा।
एमडी वासा की ज़ेर सदारत इजलास रेवेन्यू रिकवरी के इक़दाम का जायज़ा। डिफ़ाल्टर सार्फिन के गिर्द शिकंजा मज़ीद सख्त करने का हुक्म दे दिया है। एमडी ने डिफ़ाल्टर सार्फिन के पानी और सीवरेज कनेक्शन मुनक़ते करने की हदायत की है। गैर कानूनी कनेक्शन में मुलव्विस होने पर सारिफ और वासा के अमले के खिलाफ FIRs का इंदराज यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। एमडी ने कहा कि माली बेज़ाब्तगी और रेवेन्यू कलेक्शन में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम टाउन्स की सतह पर रेवेन्यू कैंप्स लगाए जाएंगे। पैकेजेस मॉल में बैनुल अक़वामी हिजाब ब्रांड बोकीता का इफ्तिताह कर दिया गया है। बोकीता ख़वातीन को बगैर पिन के हिजाब के जदीद और लुबनान की तर्ज पर बैनुल अक़वामी उसूलों पर मबनी डिज़ाइन फ्राहम करेगा। पाकिस्तान में पहली बार पैकेजेस मॉल में लबनान की तर्ज पर बैनुल अक़वामी असूलों पर मबनी हिजाब ब्रांड बोकीता का इफ्तिताह हो गया है। इफ्तिताही तकरीब में इंतजामिया समेत टिकटॉकर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ने शिरकत की। सैरिश चौधरी, हमना शेख, रुखसार शेख, फातिमा जैदी ने कहा कि बगैर पिन के ये हिजाब अपनी नौयत के मुनफरिद हिजाब हैं। यहाँ आकर खुशी हुई। हिजाब्स आप सबको पता है कि हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी और कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैं नॉन हिजाबी हूँ लेकिन मुझे इनके हिजाब ने इतना ज़्यादा अट्रैक्ट किया। लाइक इनके इंस्टेंट हिजाब्स हैं। एज ए हिजाबी मुझे इनके प्रिंट्स बहुत पसंद आया है। इनके जो हिजाब हैं वो क्या कहते हैं, इंस्टेंट हिजाब है। ये पिनलेस है। आप लोगों को पिनलेस, आप लोग पिन्स ढूंढते हैं लगाने के लिए, अक्सर नहीं भी मिलती, तो ये है कि आप इंस्टेंट वेयर आप पहनो और लाइक यू आर गुड टू गो। हेड ऑफ मार्केटिंग मोहम्मद वलीद, बिजनेस मैनेजर हसन अशरफ, हसीब शुएब ने शिरकत की। बिजनेस मैनेजर हसन अशरफ ने कहा, ये बैनुल अक़वामी ब्रांड है, पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी इसे फ़रोग़ देंगे। बोकीता पाकिस्तान हमने लॉन्च किया है लाहौर में। यहाँ बहुत अच्छी हमें फीडबैक आया है, बहुत अच्छी सेल्स हैं और हमारी उम्मीद से बढ़ के हमें रिस्पांस आया। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं इसको अपना इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान में भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बोकीता की जानिब से शुरका को ब्रांड की खासियत से आगाह किया गया। PR कोमल ने कहा, यह ब्रांड इसलिए खासियत का हामिल है क्योंकि ये इंस्टेंट हिजाब के ख्याल को मुतारिफ करवा रहा है, जो ख़वातीन के लिए एक नया तस्वुर है। डिफरेंट 75 सेंटीमीटर की लेंथ है, 65 सेंटीमीटर भी आती है, और सबसे इसकी बेस्ट क्वालिटी है कि ये फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान पिनलेस हिजाब आए हैं अदर देन अदर ब्रांड्स जो अभी इस टाइम दुपट्टा कर रहे हैं। ये इंस्टेंट वेयर हिजाब्स हैं। मुल्क में हिजाब के मुख्तलिफ ब्रांड हैं, ताहम बोकीता का एक जदीद और मुनफरिद हिजाब है जिसे ख़वातीन की जानिब से सराहा भी जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम सालाना हफ्त रोज़ा रिसर्च वीक की इख्तितामी तकरीब में रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 का इनेकाद किया गया। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद, साबिक MN शहनाज वज़ीर अली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम सालाना हिफ्त रोज़ा रिसर्च वीक की इख्तितामी तकरीब में रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड्स मुनक्किद किए गए। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने शिरकत की। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर नसीर पाशा, वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने भी शिरकत की। आपको एक नई शिफ्ट चाहिए कि इस रिसर्च का फ़ायदा हो, इम्पैक्ट बेस्ड रिसर्च हो, जो हमारी यूनिवर्सिटी ने इस जो आज रिसर्च एक्सीलेंस जो वीक मना रहे हैं सेलिब्रेशन, इसमें भी फोकस इनका यही है कि जो भी रिसर्च हो उसको इंडस्ट्री के साथ मिलके और इंसानियत के वायदे के लिए किया जाए। तकरीब में उम्दा रिसर्च परफॉर्मेंस दिखाने वाले 88 फैकल्टी मेंबर्स में 40 लाख मालियत के इनामात तकसीम किए गए। जितने भी रिसर्चर्स थे आए हैं, ट्रेनिंग्स हुई हैं, तो हमने अपने जो टॉप रिसर्चर्स हैं उनको अवार्ड्स दिए हैं और उनके अवार्ड्स के साथ ताकि जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया है और कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सॉल्यूशंस, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्क था। रिसर्च वीक का मकसद पाकिस्तान में रिसर्च कल्चर को फरोग देना था। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी ने तमाम अवार्ड्स विनर्स को रिसर्च अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स दिए। कैमरामैन राना आज़िर के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदारती उम्मीदवार शहजाद शौकत के एजाज़ में इशाया दिया गया। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून, आज़म नज़ीर तारड़ की शिरकत। वकला रहनुमाओं ने शहजाद शौकत की हमायत का ऐलान कर दिया है। वकला रहनुमाओं ने एहसन भून और आज़म नज़ीर तारड़, हफीज़ुर रहमान चौधरी, यासीन आज़ाद, कल्ब हुसैन, कलीम खुर्शीद चौधरी, हारून और रशीद ने शिरकत की, जबकि हसन रजा पाशा और राना मशहूद अहमद खान, ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच, अमजद शाह और गुलाम सरवर नहंग भी शरीक हुए, जबकि चौधरी इमरान रजा चदर, हारिस अजमत, सरदार अकबर अली डोगर, फरहाद अली शाह, साकिब अकरम गोंदल, रफाकत डोगर भी शरीक हुए। हाफिज़ अंसारुल हक, मलिक सरदार अहमद और मियाँ शाह अब्बास, GA खान तारिक, आसिफ चीमा, मोहम्मद शाह हसन ने भी शिरकत की, जबकि हारून दुगल और मलिक अख्तर जावेद समेत वकला की कसीर तादाद इशाये में मौजूद थी।
सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजान खालिद परवेज़ की साहबजादी रिश्ता इज़्दिवाज में बन गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने रुखसती की तकरीब में खसूसी तौर पर शिरकत की। खालिद परवेज़ की साहबजादी खदीजा खालिद की शादी ज़ुबैर नसीर मलिक से अंजाम पा गई। आयशा महबूब फार्म हाउस रायविंड रोड पर रुखसती की तकरीब का इनेकाद किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में अली परवेज़ मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मुजाहिद मकसूद बट शरीक हुए। इरफान इकबाल शेख, ग्रुप एडिटर सिटी 42, नवीद चौधरी, मियाँ अंजुम निसार, बाऊ मोहम्मद बशीर ने शिरकत की। मोहम्मद अली मियाँ, मलिक अहमद, मियाँ अबू जरशाद, शेख वसीम समेत दीगर सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। लाहौर स्मार्ट सिटी पोलो इन पिंक टूर्नामेंट पब्लिक ब्रेकर की टीम ने टीम रेजास पोलो को हराकर मेन फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लाहौर पोलो क्लब में खेले जाने वाले मैच में पेबल ब्रेकर की टीम ने ज़बरदस्त मुकाबले के बाद टीम रेजास पोलो को हराकर मेन फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, जबकि पेबल ब्रेकर की तरफ से अहमद अली टवाना और बिलाल हाई ने 4-4 गोल स्कोर किए, जबकि रेजास पोलो की तरफ से अहमद बिलाल आदिल राव और फैसल शहजाद ने 2-2 गोल स्कोर किए, जबकि डीएस पोलो शेख स्टील ने गार्ड ग्रुप को हराकर सब फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ईसा खान मेमोरियल फ्लड लाइट्स फुटबॉल टूर्नामेंट में 2 मैचों का फैसला। जेड के फुटबॉल क्लब और उस्मानिया क्लब ने मैचेस जीत लिए हैं, जबकि मैच में जेड के फुटबॉल क्लब ने नासिर शहीद फुटबॉल क्लब को 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। जेड के क्लब की जानिब से ज़ियाउर रहमान 3 गोल, मोहम्मद दानिश ने 1 गोल स्कोर किया। दूसरे मैच में अराइया फुटबॉल क्लब और उस्मानिया फुटबॉल की टीमें मद्दे मुकाबिल हुई। उस्मानिया फुटबॉल क्लब ने मैच 1 के मुकाबले में 3 गोल से जीत लिया है। कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर आखिरी रोज़ भी नामवर क्लासिकल गुलकारों ने सुर बखेरे। कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस अलहमरा आर्ट सेंटर में 5 रोज तक जारी रही। गुलकारों ने क्लासिकी मौसीकी पेश की। गुलकारों ने मुख्तलिफ राग, अलापे और शुरका से खूब दाद वसूल की। तबले, सितार और हारमोनियम के सुरों के साथ रात गए तक आखिरी रोज परफॉर्मेंसेस पेश की गयी। शहरियों और फनकारों का कहना है कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस के जरिए ही क्लासिकी मौसीकी मुल्क में जिंदा है। ऐसे फेस्टिवल्स का इनेकाद होते रहना चाहिए। कैमरामैन अली अदनान के हमरा जहन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।